So guys, I'm starting with a very important chapter, which is chapter 7, known as AD, AS and its related components. Aggregate demand, aggregate supply and its related component. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हर चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड, हर चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीगेट सप्लाई. आर यू अंडरस्टैंडिंग जानवी? Yes, ma'am. देखो, so what is aggregate demand, guys? Aggregate demand refers to demand of the economy as a whole. Aggregate demand refers to Demand of the economy the as a demand refers to the demand which is done by all the four sectors of the economy. All the four sectors of the economy. Basically, what is aggregate demand? Entire demand of the economy. Are you understanding? हमारे देश में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जब वो सब मिल के डिमांड करते हैं किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, उसको हम कौन सी डिमांड बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगेन, एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड या point period. डिमांड तो लंबी होती है ना, पूरे साल की डिमांड कितनी है या Flow पूरे concept. साल, फ्लो कॉन्सेप्ट. तो एग्रीगेट डिमांड मेजर्स, ठीक है, मेजर्स द डिमांड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्रीगेट डिमांड सारी डिमांड को एज अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करती है. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है. उसके बाद हम आगे आएंगे. अब देखो, एग्रीगेट डिमांड करता कौन है? एग्रीगेट डिमांड करते हैं मैडम कंज्यूमर्स, है ना, या एंड अदर पीपल, जो भी है, अदर पीपल इन द इकोनॉमी. हाँ या नहीं? तो जो डिमांड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आर दे विलिंग टू स्पेंड और नॉट? They are willing to spend. If you They are willing. if you are demanding something, that means you are willing to spend. Yes. That means aggregate demand is nothing but the total expenditure. Aggregate demand कुछ नहीं है, but it is total expenditure done by All the four sectors. all the four sectors. कितने सेक्टर है हमारे देश में? 4 सेक्टर. चारों सेक्टर मिलके जो खर्चा करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, खर्चा ऑन व्हाट? खर्चा ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. सो एग्रीगेट डिमांड कैन बी सिनोनिमसली यूज्ड एज total expenditure done by all the four sectors or the economy. Are you understanding? This chapter is very important. Every term that I use is very important. ठीक है, चलो आ जाओ. Ma'am, a question. क्या हुआ? Ma'am, all the four sectors of the economy to be infrastructure. Is it like primary sector, secondary sector? No. अभी आएंगे. Everything. I'll explain you everything in a bit detail. Don't worry. अच्छा. चलो आ जाओ. एग्रीगेट डिमांड सुनते जाओ. सूर्यांश, कोई डाउट होगा तो पूछना. Aggregate demand does not refer to demand for any particular good or service in the market. So basically, what is aggregate demand? It refers to demand for all goods and services in the economy. Aggregate demand refers to what? Demand for all the goods and services in the entire economy. Okay. AD is measured for a period of 1 year. एक अकाउंटिंग ईयर के लिए हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं, इसलिए वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट. क्लियर है बात? Yes, ma'am. आगे आ जाओ. एग्रीगेट डिमांड इज नॉट as the sum total of physical quantities of goods demanded in the economy. In fact, it is not possible to do so. Aggregate demand measures
measured in terms of total expenditure on goods and services. Total demand लोगों की बताना समझ में नहीं आता, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि एक साल में इस देश में गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा कितना हुआ. So aggregate demand is nothing but the total expenditure done in the economy. देखो आ गया जो. So AD is nothing but what the total expenditure by the economy. Again, AD is always expressed as what people wish to spend or what people plan to spend. Never intercept AD as what people actually spend. Look. AD मतलब aggregate demand. Aggregate demand का मतलब है planned demand. क्या? Planned demand. क्या बोलेंगे हम इसको? Planned demand. Or people wish to demand, not what they actually demand. मतलब other way round. Aggregate demand मतलब expenditure मतलब planned expenditure. या हम सोचते हैं कि हम इतना खर्चा करेंगे, but it is not what we are actually spending. So basically aggregate demand या aggregate expenditure का मतलब होता है planned expenditure. मतलब हमने सोचा कि इस साल हमको maybe एक कार खरीदनी है, तो ये मेरा क्या था? planned expenditure. हाँ या नहीं? ठीक है, तुमने सोचा कि तुमको इस साल एक 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है, so that is your aggregate demand. Aggregate demand का मतलब क्या है कि planned demand है वो आपकी. You wish to demand, you wish to spend, है ना, लेकिन you end up buying a car maybe of 7 lakh rupees, है ना, you end up buying a car of 7 lakh rupees. So this is what you have actually demanded. You have actually demanded something for 7 lakh, but what was your planned demand? 10 lakh. So aggregate demand is not the actual demand. Aggregate demand is the planned demand. ऐसे तो मैं plan to buy 50 billion dollars में, तो अगर सप्लाई के लिए एसीज बनानी है तो लोग एंटिसिपेट करेंगे ना डिमांड तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन अगर तुमको गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, यू नीड टू एंटिसिपेट डिमांड ना, कि इस साल 2 करोड़ एसी की डिमांड हो सकती है. So this is from the supplier's point of view. No, this is from aggregate demand's point of view only. कि aggregate demand जो word है, it is not the actual demand, it is the anticipated demand. कि हम इतनी डिमांड करेंगे या कंज्यूमर्स इतनी डिमांड कर सकते हैं. नेक्स्ट, ठीक है, कि कंज्यूमर्स इतनी डिमांड कर सकते हैं. ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे लिखो इट इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. लिखो उसके बाजू में, 4th पॉइंट के बाजू में, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर. एग्रीगेट डिमांड का मतलब है planned expenditure which people are actually wishing to spend or they just want to spend, but actually कितना खर्चा होगा या actually कितनी डिमांड होगी उसको हम एग्रीगेट डिमांड नहीं बोलते. समझ में आया जानवी? Yes. How do they actually calculate the planned expenditure? उनको तो उतना ही पता होगा जितना actually spend किया. नहीं ना, ऐसा नहीं होता. अब तुम जा रहे हो मॉल, तुमको लगा मैं ये चीज़ें खरीदूंगा, लेकिन वहाँ जाके चीज़ नहीं मिली ना, तो एक्चुअल और प्लान अलग नहीं हो सकता क्या? तो जो लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं कि हाँ इस कंट्री का इतना एग्रीगेट डिमांड था, उनको कैसे पता चलेगा कि उनका प्लान एक्सपेंडिचर कितना है और उनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर तो पता चल जाएगा कितना, बट हाउ डू दे फिगर आउट प्लान एक्सपेंडिचर कितना है? जब AD falls short of AS, Then average demand falls short of average. तुम अगर प्लान बनाया है ना कि लोग 10 चीज़ें डिमांड करेंगे, है ना, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर था, तो उसके हिसाब से तुमने सप्लाई कितनी करी? 10 की, लेकिन लोगों ने खरीदी 11 चीज़ें, तो तुमको पता चल गया ना प्लान क्या थी? कम. प्लान क्या थी? ज़्यादा. और एक्चुअल प्लान क्या थी? कम थी. और एक्चुअल क्या थी? ज़्यादा. समझ में आ रही है बात? तो जब एक्चुअली में वो होता है
तब वो समझ में आ जाता है कि प्लांट ज़्यादा थी या प्लांट कम थी। वैसे ही जब तुम बाहर जाते हो तो तुम सोचते हो कि मैं 1,000 रुपये का ये सामान लूँगा, लेकिन हो सकता है कभी 1,000 से ज़्यादा लग जाए और 1,000 से कम लग जाए। लेकिन एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर हमेशा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, फिर आप एक्चुअल से उसको मेजर कर सकते हो। समझ आ रही है जानवी? कोई डाउट है? नो। अब यहाँ देखो जल्दी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक बंदे का एक्सपेंडिचर है तो दूसरे बंदे की क्या होगी? इनकम। तो वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। जानवी? व्हाट? Yes. यस ऑफ कोर्स। नहीं, व्हाट आर थिंकिंग इन दैट? तुम मुझे फीस दे रही हो तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर और मेरी क्या है? इनकम है ना। तो फिर इतना सोचने की क्या बात है इसमें? कभी सेकंड टाइम तो समझना आता है। चलो अब यहाँ ध्यान दो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ तुमको कि यू डिमांड समथिंग, यू वांट टू बाय समथिंग, कैन यू बाय थिंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम? नहीं, you can do services, you can provide services. एक सुनो, इनकम एडी। अरे यार छोड़ो यार, इनकम एडी नहीं बताते, अभी बड़े नहीं हो। नहीं बताओ। नहीं, पहले नहीं बताओ। हम 4 सेक्टर्स पढ़ेंगे। नहीं पहले वो करो। नहीं पहले सेक्टर्स पढ़ोगे। देखो 4 सेक्टर्स इकोनॉमी के क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, हाउस होल्ड सेक्टर। चुप रहो तुम, ठीक है? सबसे पहला सेक्टर कौन सा है? हाउस होल्ड सेक्टर। सुनो, हम वी आर व्हाट? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है? हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या? ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है? There are 4 sectors in the economy. The first sector is the household sector, which directly buys goods and services and satisfy themselves. And any kharcha which household is doing in buying goods and services is known as consumption expenditure. कोई doubt है क्या? दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं फर्म्स, ठीक है? फर्म्स खर्चा किस चीज में करती है? मशीन खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है ताकि वो गुड्स आगे और बना पाए। तो जो भी खर्चा प्रोड्यूसर सेक्टर करता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कोई डाउट है? ये पहला, ये दूसरा। तीसरा सेक्टर आता है अपना गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है? गवर्नमेंट सेक्टर पे भी ऑफ कोर्स खर्चे होते हैं, अपने वेलफेयर के लिए काम करती है, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है ना? तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी खर्चा चाहिए। तो जो खर्चा गवर्नमेंट करती है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। कोई डाउट? फर्स्ट वन। फोर्थ इज फॉरेन सेक्टर। क्या? फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद है क्या जानवी? कहाँ पढ़ा था जानवी है तुमने? मनी। नेशनल इनकम नहीं पढ़ाई क्या तुमने? हाँ, उसमें कैसे? अरे ये नहीं पढ़ी है मुझसे नेशनल इनकम, ठीक है? इसलिए याद नहीं उसको। देखो और नंबर तो दिमाग में घुसा दिया होता मैंने। चलो अब फॉरेन सेक्टर में क्या आता है? फॉरेन सेक्टर जो खर्चा करती है उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है ये बात? चारों सेक्टर क्लियर है क्या जानवी? चलो उसके बाद अब होती है 2 टाइप की इकोनॉमी। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। हाँ या नहीं? जानवी पता है कि नहीं तुमको? पता है। हाँ, ओपन इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है? हाउस होल्ड भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है,
क्लियर है कि नहीं ये बात यहाँ तक? तो देखो, जो भी खर्चा हाउस होल्ड करता है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन स्पीक अप जानवी? द खर्चा विच इज डन बाय द हाउस होल्ड ऑन प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लिखते हैं सी। क्या लिखते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैसे डिनोट किया जाता है? सी से। क्लियर है बात? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे डिनोट किया जाता है? आई। गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे डिनोट किया जाता है? जी। और फॉरेन सेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है? एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। समझ में आया कि नहीं जानवी? यस। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ दो खर्चे होते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्लोज्ड इकोनॉमी को हम बोलेंगे कि देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला? क्लोज्ड इकोनॉमी में दो खर्चे होते हैं, और खर्चे का मतलब एग्रीगेट डिमांड। हाँ या नहीं जानवी? यस मैम। तो खर्चे का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। एक्सपेंडिचर दो हैं। कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं? एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ या नहीं? हाँ। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एडी। हाँ या नहीं? सो एडी aggregate demand in the closed economy will be C plus I. AD is equals to C plus I in the closed economy. Any doubt? No मैम। When we talk about open economy, तो open economy का total expenditure क्या होगा? Consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus exports minus imports. हाँ या नहीं जानती? हाँ। तो कभी भी हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को यहाँ पे एच नहीं लिखना है, कभी फर्म के एक्सपेंडिचर को यहाँ पे प्रोड्यूसर या एफ नहीं लिखना है। It is what C plus I in a closed economy, and it is all in an open economy. बताओ जानवी? कोई closed economy exist ही नहीं करेगी। बताओ जानवी, कोई डाउट है? पक्का? यस मैम। ओके, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट क्या पढ़ोगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या? Consumption expenditure is done by household, investment expenditure is done by firms and producers, government expenditure is done by government, and export and import is done by the foreign sector, rest of the world. Yes or no? But हम सिर्फ aggregate demand पढ़ेंगे closed economy। बाकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी सिलेबस में नहीं है। तो मेन चीज ठीक है, तो अगर पूछेंगे व्हाट आर द 4 सेक्टर्स, तो आप चारों सेक्टर्स को समझाओगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने सेक्टर्स के बारे में? दो। सो अगर हम बोलेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस I। याद हो गया ये? एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? C प्लस I। C का मतलब क्या है जानवी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और I का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? हाउसहोल्ड सेक्टर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? गुड्स सेक्टर। एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर बोल सकती हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर। यस। वेरी चलो, हाँ चलो, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे। अब आएंगे हम मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है भाई कि इनकम क्या है तुम्हारी? जीरो। इनकम क्या है? जीरो। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या दो चीजें मिली हुई रहती है? एग्रीगेट डिमांड में क्या दो चीजें मिली हुई रहती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सी दुनिया? अब मेरी बात सुनो, इनकम जीरो है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? ज्यादा हो सकती है। जीरो।
मतलब ये बोल रही है जानवी कि अगर मेरी इनकम जीरो होगी तो खर्चा खर्चा मतलब एग्रीगेट डिमांड, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड भी जीरो होगी। अच्छा ये बोल रहा है नहीं होगी क्यों, क्या कुछ तो चाहिए ना सर, कुछ तो डिमांड करना है। कहाँ से करेगा, कितने बस 2 रुपए लगाएंगे। गवर्नमेंट के कितने सब्सिडी कितने प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं, जीरो होना इम्पॉसिबल है। लॉजिक है। अब तुम लोग को डिसाइड करना है जीरो इनकम पे डिमांड। जीरो इतनी देर तक बकवास कर रहा था हैं, और अब ज्यादा बातें कर रहा है, अभी तो कुछ और ही बोल रहा था तू हैं। But again, you still have demand something. देखो भाई अब सुन लो भाई सुन लो, इनकम जीरो हो या कुछ भी हो, एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होती। कहाँ था मैं? ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कैन नेवर बी जीरो। यू विल बेग टू ईट, यू विल ड्रॉ अप योर पास्ट सेविंग्स टू ईट। तुमको मैंने सिखाया भी था फर्स्ट सेकंड तो मैंने बोला ना जीरो। याद तुझे कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। अरे इनकम अगर जीरो होती है तो भी एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं होती। आइदर टू हैव गुड्स यू विल ड्रॉप योर पास्ट सेविंग्स और यू विल बेग, सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू ड्रॉप योर पास्ट सेविंग्स, यस और नो। तो इनकम जीरो होने से भी एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं होती। नॉट डिफरेंट। कोई डाउट है? तो अब एक और चीज, कंजम्पशन कर रहे हो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कि नहीं कर रहे हो? बताओ जानवी, कंजम्पशन कर रहे हो कि नहीं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कर रहे हो? तो कंजम्पशन डन एट जीरो लेवल ऑफ income is known as autonomous consumption। जिस कंजम्पशन को आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी करते हो उसको हम कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन कैन नेवर बी zero even if the income is zero। बताइए कोई डाउट? बताइए कोई डाउट है क्या आपका? Yes. As income increases, क्या कर रहे हो? कॉन्सेंट्रेट कर लो। एक वर्ड तो तुम लिख नहीं रहे हो कुछ भी। क्या लिखा है बताओ? इतनी सारी चीज मैंने लिख दी, तुमने लिखा क्या मुझे ये बताओ? कुछ भी नहीं लिखा है तुमने। बताओ ना क्या लिखना है। लिख रही हूँ मैं इतनी सारी चीजें, फिर भी तुम बैठे हो लास्ट में लिखना। कुछ नहीं लिखते लास्ट में कोई। चलो, इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? When income is increasing, consumption is increasing or not? Yes, consumption is also increasing. But क्या income के जितना increase हो रहा है क्या consumption? नहीं। Consumption income increase होती है लेकिन consumption उतना increase नहीं होता। क्यों? क्योंकि income को हम क्या बोलते हैं? Y। इनकम को हम y से डिनोट करते हैं। इनकम से सिर्फ आप दो ही चीज कर सकते हो, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग। ठीक है, तो अगर आप आपके 100 रुपए में से 80 कंज्यूम कर रहे हो मतलब 20 क्या करोगे? सेव। अगर आप अपने 200 में से 170 कंज्यूम कर रहे हो मतलब 30 क्या करोगे? सेव। इसलिए जब इनकम इंक्रीज होती है ना, तो कंजम्पशन इंक्रीज तो होता है लेकिन इनकम के जितना इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज पीपल ट्राई टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम।
Are you understanding or not, guys? Yes, ma'am. So as income increases, ठीक है, consumption also increases, but not as much that of income, because people try to save a part of their income, save a part of their income as it increases. बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ जानवी, कोई डाउट है? No. पक्का? Yes. अब देखो अगेन हम एक बार ऊपर कर इनकम सी आई और ए डी, इनकम 0, 100, 200, 300 और 400। देखो अभी जस्ट तुमने कंजम्पशन के बारे में पढ़ा है पूरा ऊपर कि कंजम्पशन, इनकम 0 होती है तो भी कंजम्पशन 0 नहीं होता, इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम के जितना इंक्रीज नहीं होता। पढ़ा है कि नहीं है अभी तुमने जस्ट? ठीक है, अब आपको बिहेवियर पढ़ना है आई का, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का क्या बिहेवियर है? देखो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, ठीक है, एक इंड्यूस्ड और एक ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम के साथ बढ़ती जाती है, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट, और जैसे जैसे आपके पास पैसे आता है और पैसे वहाँ डालते जाते हो, ठीक है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के साथ आप इंक्रीज नहीं करते, वो ऑटोनॉमस रहती है ना, वो इनकम, वो इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स्ड रहती है। तो यहाँ पे इको में हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। हर इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर में हम क्या मानेंगे? ऑटोनॉमस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस नहीं आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट 0 में भी 200, और ये इनकम बढ़ेगी तो भी 200, इनकम कम होगी तो भी क्या? 200। क्लियर है कि नहीं बात जानवी? Ma'am, can you repeat the types of investments again? There are 2 types of investment, एक induced investment और एक autonomous investment। Induced investment वो होती है which increases with the increase in income, and autonomous investment is a kind of investment that remains constant irrespective of the income। सब है वैसे आगे, irrespective of the income, मतलब इनकम के चेंज होने से भी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस नहीं आएंगे। और हम इको में अभी वही वाली इन्वेस्टमेंट लेंगे ऑटोनॉमस, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि कंजम्पशन तो चेंज होता है, अगर इन्वेस्टमेंट भी चेंजेस वाली लेने लग गए तो एडी में फिर बहुत फ्लक्चुएशन आएंगे, ठीक है। तो देखो कंजम्पशन चेंज नहीं होता, कंजम्पशन 50, इनकम इंक्रीज हुई तो यहाँ पे कितना हो गया? 100, उसके बाद मान लो हो गया 150, उसके बाद कितना हो गया? मान लो 280, और उसके बाद कितना हो गया? मान लो 350। समझ आ रही है बात? तो जब सी और आई को ऐड करेंगे तो एडी आएगा या नहीं आएगा? अब एडी तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता, इसलिए एग्रीगेट डिमांड कभी 0 नहीं हो सकती। बताओ कोई डाउट है क्या? पक्का? Yes. ठीक है, तो ये रहता है कांस्टेंट, ये होता है इंक्रीज, एडी भी इसलिए क्या होता है? इंक्रीज। तो एडी किसके कारण इंक्रीज हो रहा है? कंजम्पशन के कारण कि इन्वेस्टमेंट के कारण? कंजम्पशन के कारण, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं है बात? हम एक एग्जांपल दे सकते हैं वो फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का। देखो ऑटोनॉमस का पहले एग्जांपल देते हैं। ऑटोनॉमस का एग्जांपल है गवर्नमेंट एक जगह करके इन्वेस्ट कर दी तो अब इनकम और बढ़ेगी तो उसमें चेंजेस नहीं लाने वाले लोग, है ना। मतलब एक हॉस्पिटल बना दिया, उसने एक बजट निकाला कि इस हॉस्पिटल में 3 करोड़ लगेंगे।
अब उस हॉस्पिटल से इनकम होगी तो वो वापस थोड़ी उस हॉस्पिटल में पैसे डालते रहेंगे, वापस थोड़ी एक प्रीमाइसेस बनाएगी, नहीं, ऑटोनॉमस फिक्स्ड है, इनकम होगी या नहीं होगी वो चीज़ करने वाली है। जबकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं कि जैसे इनकम आई आप और मशीनरी लेके आते हो, आप और गुड्स लेके आते हो, तो इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी क्या करते हो, इंक्रीज, तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, समझ आ गया सबको? बोलो। Yes, ma'am. 1 minute. 1 minute break. चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, चलो ये इसमें आ जाओ तुम, वो वाला पेज स्किप कर दो, 246 247 सीधा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में आ जाओ। दिख गया? Yes, ma'am. चलो तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में क्या आएगा सबसे पहले? हाउस होल्ड दिख रहा है कि नहीं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। पढ़ा था कि नहीं? वो तो मैं समझ। हाँ चुप रहो, पढ़ना तो है ना। चलो कोई डाउट है? सिलेबस में नहीं पढ़ना। ऊपर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा। अब है components of AD in closed economy। सुनते जाओ। A closed economy 2 सेक्टर भी हो सकती है, 3 सेक्टर भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी closed economy में इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन फॉरेन सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा है। A 2 sector closed economy includes household sector and producer sector, especially there is no government sector in this economy। ब्रैकेट बनाओ भाई तुम, household purchase goods for the purpose of consumption, accordingly their expenditure is known as इन्वेस्टमेंट, उनके लिए इन्वेस्टमेंट। households जो कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को क्या बोलते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया? गुड। Producers on the other hand, bracket, purchase goods for the purpose of investment, so any expenditure on the part of producers is known as investment expenditure। So there are 2 components of aggregate demand in the closed economy, which is C plus I। बताओ कोई डाउट है क्या तुमको? No, ma'am. आगे आ जाओ फिर। A 3 sector closed economy includes 3 different sectors। The government makes collective consumption expenditure, bracket, it refers to public consumption expenditure or consumption expenditure on behalf of the society as a whole। बेसिकली गवर्नमेंट जो इंटरफेयर करती है और गुड्स और सर्विसेज परचेज करती है। देखो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज भी परचेज कर सकती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। Also the government makes the investment expenditure such as expenditure on roads and bridges, bracket, the total expenditure including the consumption expenditure and investment expenditure by the government is known as government expenditure। So government आ जाएगी तो हम कैसे डिनोट करेंगे? AD is equals to C plus I plus बताओ जानवी, कोई डाउट है? No, ma'am. पक्का? Yes. चलो आ जाओ। Components of AD in the closed economy, तो 4 सेक्टर्स हो जाएंगे, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी में एक और ओपन इकोनॉमी में एक और आ जाएगा x माइनस m। देखो ब्रैकेट बनाओ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स। और कभी कभी हम भी बाहर से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। Thus, exports add to aggregate demand, but also we make import from rest of the world। Underline, import and export दोनों opposite है। While export AD को increase करता है, aggregate demand को, expenditure को क्या करता है? Increase करता है। export अच्छी बात होती है। On the other hand, imports क्या होती है? बुरी बात होती है। ठीक है,
import decrease it. Accordingly हम net value कैसे निकालते हैं? Export minus import करके. कोई doubt? जानवी कोई doubt है? No, ma'am. पक्का? Yes. अब देखो क्या दिखा रहे हैं उसमें नीचे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में उन्होंने बताया इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जो जस्ट मैंने तुमको अलग फिगर्स में बताया कि इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन 50 रहेगा, इन्वेस्टमेंट तो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो एडी किससे मिलके बनता है? सी प्लस आई से, हाँ या नहीं? चलो पीछे आ जाओ, 246 में आ जाओ। जानवी एक बात बताओ आप तुम लोग मुझे, आप बताइए। जानवी C is equal to 250 minus 100. बताती चलो, बताती चलो। चलो बताओ। First one 50 है. हाँ First one is 150. हाँ Second one is 200. And one is माइनस में क्या सोच सकते हैं? 300. कोई डाउट? नहीं. वही बात है। हमने गलत सब किया। चलो अब आगे आ जाओ। अब जो मैं पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उनका आंसर लो, फिर हम कर्व बनाएंगे। इसमें भी कर्व से यार, मुझे तो बस 11th में है। पागल है क्या? सिर्फ यही चैप्टर में कर्व है? नहीं नहीं नहीं, आगे के सब चैप्टर में कर्व है? सब में कर्व है, सब में। जैसे माइक्रो भी करा दी। कर्व बनाने में क्या बुराई है मुझे नहीं बता। पसंद। तुझे कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला इसलिए नहीं पसंद होगा। मुझे तो जिसको डिफिकल्टी होती है ना, रजत है वाला? मुझे कोई यूट्यूबर है मैम पूरा कंफ्यूज करते हैं रजत वगैरह मेरे को तो. हाँ रजत वगैरह is very confusing. ये इनको ऐसे बच्चे लोग को ऐसे ही पसंद, रजत वाला ऐसे ही कंफ्यूजिंग हो रही है। Okay, this is my important lecture. I don't want to get into any controversies. Okay, Rajat Arora might be very good, but I don't know. 11th में पास हुआ हूँ। I need to search. चलो मैं आगे। एक रात पहले से वीडियोस देख के एग्जाम्स के लिए। चलो भैया ये बताओ दोनों मिलके, इन्वेस्टमेंट 0 हो सकता है क्या? हो सकता है. तो नहीं हो सकता महारानी, कांस्टेंट रहता है वो। इन्वेस्टमेंट 0 हो सकता है क्या जानवी? अगर किसी को करना नहीं है तो शायद नहीं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं ना कि करना है और किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट कभी 0 हो सकता है क्या जानवी? नहीं. हाँ, नहीं. कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं. तो एग्रीगेट डिमांड 0 हो सकता है क्या? नहीं. क्लियर? फर्स्ट है। X एक्सिस, Y एक्सिस, O, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे AD, नहीं AD बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कंजम्पशन, डिमांड यहाँ हम बताएंगे कर्व, C का कर्व बनाओगे क्या? C का बनाओगे, I का बनाओगे और AD का बनाओगे, है ना? आप डायरेक्टली AD भी लिख सकते हो, ठीक है क्या? और यहाँ पे आएगा आउटपुट। What was that? हाँ? पहली बार जाना। अरे ये नहीं खोल।
अब मुझे ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट जीरो होता है जानवी फॉर द nth टाइम? It's not. तो क्या, एक मिनट आप बताओ, क्या जीरो से चालू हो सकता है? जो चीज जीरो नहीं होती वो जीरो से चालू भी नहीं होती, तो वो कहीं ऊपर से चालू होगी और कांस्टेंट रहेगी। चाहे कितना भी तुम्हारा इनकम हो, हम क्या रहेंगे? कांस्टेंट। एडी थोड़ी ना कांस्टेंट है। नहीं रहेगा ना, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर? उसके बाद कंजम्पशन कभी जीरो होता है क्या? क्या महारानी? No. कंजम्पशन जीरो नहीं होता है ना, तो क्या वो जीरो से चालू होगा? बोलो। नहीं, तो वो भी कहाँ से चालू होगा? ऊपर से। तो कहाँ, इन्वेस्टमेंट के पास से करना है कि कहाँ से करना है? इन्वेस्टमेंट के नीचे। किधर? अब वी पॉइंट्स पकड़ लो। बताओ कहाँ से आएगा? नीचे ऊपर 100% ऊपर हार्डली मैटर्स। नीचे। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कितने हार्डली मैटर्स है ना, यहाँ से भी वो क्या हो सकता है? चालू। तो ये क्या हो गया? कंजम्पशन। अब मुझे एक बात बताओ कि एडी का कर्व हमेशा दोनों से तो ऊपर ही रहेगा ना, हाँ। क्योंकि दोनों से तो बड़ा होता है। तो उसके बाद क्या बनाते हैं हम? ठीक है, सो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। एडी कर्व हमेशा इन दोनों से ऊपर चालू होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और ये यहाँ से चालू होगा और सी और एडी क्या रहेंगे? कांस्टेंट, हम पैरेलल रहेंगे हमेशा। बताओ कोई डाउट है? जानवी? मैम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के नीचे क्यों है? कंजम्पशन तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे बहुत कम रहता है ना, हाँ इन्वेस्टमेंट से भी कम रहता है ना वो तो। ये वाला कर्व ऐसा वाला दिया नहीं है तो तुम बना लो छोटू सा, उसके बाजू में ही बना लो। वहाँ पे एक और y वाला कर्व है, और सुनो, एक कर्व हमेशा बनेगा और हमेशा तुमको याद रखना है यहाँ से, कहाँ से? ओरिजिन से बनेगा। ओरिजिन से बनेगा यहाँ से ऐसा। अरे बाप रे, क्या बनाया मैंने? चलो जब बनेगा तब बनेगा, अभी ये समझ आ गया क्या? बोलो जल्दी बताओ, कोई डाउट है? और देखो जहाँ पे, अच्छा कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो अब रीड कर रहे हैं, आ जाओ। Behavior of aggregate demand schedule. Since aggregate demand is measured in terms of aggregate expenditure. Expenditure on what? On goods and services. Behavior of AD is studied, underline, behavior of AD is studied in terms of behavior of aggregate expenditure at different level of income. हम एग्रीगेट का नेचर कैसे पढ़ते हैं कि अलग अलग इनकम पे हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना होगा, अलग अलग होगा। आ गया, ब्रैकेट बनाओ। दस बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड का मतलब है हाउ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन इनकम, है ना, या चेंजेस इन कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन चेंज होगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। Thus, behavior of AD means how aggregate expenditure responds to different level of income in the economy. Y का मतलब क्या है? Income. ठीक. This is expressed by the way of schedule known as AD schedule or AE schedule. Aggregate expenditure. Underline aggregate schedule एक ऐसा टेबल होता है जो अलग अलग इनकम पे अलग अलग एग्रीगेट डिमांड को शो करता है। चलो ब्रैकेट बनाओ। There is always some minimum level of expenditure in the economy, even at zero level of income, known as what?
There is always some minimum level of expenditure in the economy, even at zero level of income. So what is that known as? जी Expenditure that you do at zero level of income. एक्सपेंडिचर बताओ सेविंग से का एक्सपेंडिचर क्या नाम था उसका? जानवी नाम याद नहीं। क्यों लिखा नहीं क्या जो मैं लिख रही थी? थोड़ा बहुत देखो। क्या लिखा है थोड़ा बहुत? उसमें वो लिखा था मैंने। समथिंग विद ए। What? क्या ट्रेजर हंट चला रहा है? एग्रीगेट Aggregate. मतलब मैं इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही थी आपको 10 बार मैंने बोला है ना कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर, फिर भी जो इतने इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं एक्चुअली वो कि जो तुमको हेल्प करेंगे कि तुम बार बार एक बार उसको देखोगे तो तुमको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, फिर भी यू आर सो लेजी टू राइट लिटरली। ईमान बताओ मैं क्यों बताऊँ, तुम लोग ढूंढते रहना रिकॉर्डिंग। ईमान बताओ चलो आ जाओ। मैंने ऐसा चलो, there is always some minimum level of expenditure in the economy even when y is equal to 0. जब इनकम जीरो होती है तो भी हम कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। The reason is simple. You must incur some expenditure to buy goods for your survival. कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा even when your income is absolutely zero. You may do it through borrowing called negative saving. आप अपनी सेविंग से ड्रॉ करते हो और एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है। मैंने पूछा कि ऐसा खर्चा जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे करते हैं हम, पता ही नहीं है कुछ। अब आगे एक और चीज़ कि एग्रीगेट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। एग्रीगेट डिमांड इज मतलब जितना इनकम ज्यादा होगा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी, मतलब दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड है। मतलब रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं जानवी? यस। पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब तो पता होगा जानवी। यस। चलो आगे। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच, जब एक लेवल सर्टेन लेवल पे हम इनकम पे क्या हो जाते हैं, रीच हो जाते हैं, ठीक है। AD lags behind income. एग्रीगेट डिमांड इनकम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इनकम क्या हो जाती है आपकी ज़्यादा, क्योंकि आप सेव करने लग जाते हो तो कंजम्पशन उतना नहीं करते हो, ठीक। Thus underline this happens because at higher level of income people start saving a part of their income. ये भी मैंने तुमको लिखवाया था। एक टाइम के बाद आपका कंजम्पशन कम हो जाता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ क्या है, खाने वाने के लिए है, इसलिए अब आप अपनी इनकम को क्या करते हो, सेव करते हो। बताओ समझ में आ गया? हाँ, यस मैम। फिर से तुमको एक बार ही कर्व समझा रही मैं, देख लो। अरे वो तुम्हारे माइक्रोस्कोप में बना हुआ है वो कर्व जो मैंने बनाया है, देखा क्या तुमने जानवी? हाँ। बहुत गंदा है अभी ये पेन। ब्लैक पे ब्लैक यूज करूँ? चलो आ जाओ, सुन लो मेरी बात। सबसे पहले आप इनकम का कर्व बनाओगे। इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, हाँ या नहीं? इनकम क्या होती है, हमेशा इंक्रीज। तो इनकम का कर्व कहाँ से चालू होगा, वाई एक्सिस, जीरो से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई। कोई डाउट? ठीक है, ये हमेशा रहेगा, जो बनाना बनाओ ये रहेगा। उसके बाद क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, कांस्टेंट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एडी। एडी का कर्व बना दो, यहाँ से बना दो। इन्वेस्टमेंट से ऊपर से चालू होगा, क्यों? एडी नहीं, सी कंजम्पशन बना दो। क्या है ये, कंजम्पशन, ठीक है।
देखो अगर आप कंजम्पशन का कर्व इसके नीचे से बनाते हो तो भी ये बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ। और अगर उसके ऊपर से बनाते हो तो भी वो सही है। हाँ। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ से बनाए क्या कंजम्पशन का कर्व, तो ये हो गया कंजम्पशन, लेकिन एडी का कर्व हमेशा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से ऊपर होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। तो ये उसके बाद यहाँ से हम क्या बनाएंगे एडी का कर्व which is C plus। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं जानवी? Yes, ma'am. देखो अब सुनो, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल होती है उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल होती है। इनकम का एक और नाम है इनकम, वाई का एक और नाम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम एग्रीगेट सप्लाई। इनकम का एक और नाम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब तुम्हारी जितनी क्षमता, डिमांड मतलब खर्चा कर सकता हूँ मैं, ठीक है, सप्लाई मतलब परचेज कर, सप्लाई मतलब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं गुड्स को क्या कर सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट सप्लाई का एक और नाम है इनकम। और देखो देखो जहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल हो रही है वहीं को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और हाँ, ये जो लाइन है इनकम की वो हमेशा एक 45 डिग्री लाइन रहेगी, हमेशा वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी विच इज अ 45 डिग्री लाइन। क्लियर है बात जानवी? Yes, ma'am. वो जो आपका अलग टाइप का बॉक्स बना है नीचे उसको टिक करो। देखो क्या लिखा है? 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स एट वाई, एट लेवल ऑफ वाई 45 डिग्री लाइन बताती है कि मैं जीरो से स्टार्ट हो रही हूँ, इनकम जीरो से चालू होती है, ठीक है। दूसरी चीज एडी जहाँ पे वाई से इक्वल होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और वाई इक्वल होता है उसको हम ई पॉइंट देते हैं इक्विलिब्रियम। हाँ या नहीं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। हाँ, ma'am. ठीक है। उसके बाद एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व, और उसके बाद तुम लिख भी देना ये चीज, है ना, लिख भी लेना तुम सुन लो भैया सूर्यांश, समझ में आएगा नहीं फिर बाद में तुमको कुछ। ये देखो ये एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए, उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? ई। कौन इक्वल होगा? एडी और एएस। ठीक है, ये दोनों कर्व को आई और सी को हटा देना। ये पॉइंट जहाँ पे एडी और इनकम इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम से पहले कौन सा कर्व ऊपर है? इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम से पहले कौन सा? और सुन लो इनकम। और तुम अपने कर्व में भी लिख लो, ये जो एडी है ना, यहाँ से सी चालू होता है ना, सुनो मेरी बात, ये एडी और ये सी है, तो सी ऊपर से चालू होता है, तो यहाँ पे ये पूरा गैप है ना, तो जीरो लेवल से वो चालू नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन डन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। कुछ लिखते नहीं हो तो वो उस आंसर से होता है चलो। अब ये सी को मैं वापस मिटा रही हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। अब सुन लो इधर देखो यार, पहले तुम जानवी समझ आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. देखो यहाँ देखो, पहली चीज जब एडी और इनकम एक जगह पे इक्वल है, ई से पहले कौन सा कब ऊपर है? ई से पहले कौन सा कब ऊपर है? एडी। जल्दी जानवी। Ma'am,
समझ रहे यार। अरे ई से ई पॉइंट से पहले विच कर्व इज ऊपर? वाई। वाई कब ऊपर है? पता नहीं। अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा कर्व ऊपर है? ई पॉइंट से पहले कौन सा कर्व ऊपर है भाई? प्रायर टू पॉइंट ई विच कर्व इज ऊपर? वाई का कर्व या एडी का कर्व? तो फिर क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? इतनी माइनर चीजों के लिए तुम लोग बोलोगे कि नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? ई से पहले, और लिख भी नहीं रहे हो कुछ अपने ओन वर्ड्स में बुक में, भूल जाओगे अभी 10 दिन बाद ये चैप्टर। देखो ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट से पहले कौन सा कर्व ऊपर है? प्रायर टू पॉइंट ई AD is greater than Y, हाँ या नहीं? एग्रीगेट डिमांड इनकम से ज्यादा है या नहीं है, पहले ये बताओ। एग्रीगेट डिमांड इनकम से ज्यादा है, मतलब खर्चा इनकम से ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा। Which means अच्छा फिर इसके 3 phases हो जाएंगे। which means expenditure is more than Expenditure is more than income. expenditure is more than income, which is nothing but Y. Expenditure is AD and income is Y, हाँ या नहीं? बताओ। तो जब तुम्हारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो सेविंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाऊँ। नहीं कर पाओगे, है ना? So the savings are what? Negative. जब खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो सेविंग्स क्या बन जाएगा? नेगेटिव। The second phase. Because it is minimum level of aggregate demand. ये सबसे मिनिमम लेवल है, इतनी डिमांड तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो ई पॉइंट से पहले साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला कर्व, मतलब एडी कर्व कहाँ है? ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि एडी इज ग्रेटर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एएस। लेट इट बी, आई विल नॉट राइट एएस, हम लिखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन वाई। तो जब एग्रीगेट डिमांड मतलब खर्चा वाई से ज़्यादा होता है तो सेविंग्स क्या होती है इस फेज में? जानवी कोई डाउट है क्या? नहीं। हाँ बस। ठीक है, उसके बाद ऑन पॉइंट ई, अब क्या आएगा? ऑन पॉइंट AD E. to Y. AD is equals to Y, ठीक है? Which means Expenditure is equal to very good, which means expenditure is equal to income. So savings will be none, 0. savings will be zero. Savings will be zero. And it is point of equilibrium. टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, मैं टेलीग्राम पे ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी। एंड इट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई डाउट है क्या जानवी? नहीं मैम। ये देखो, यहाँ देखो, ई पॉइंट पे AD is equals to Y and savings are what? 0. कोई डाउट है? प्रायर
आफ्टर पॉइंट ई कौन सा का ऊपर आता हुआ दिख रहा है भैया? Y. अब जानवी वो दिख रहा है कि नहीं तुमको कि कौन ऊपर है? दिखता है कौन सा का ऊपर है? AD. Yes, after point E, aggregate demand is less than income. मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब खर्चा कम कर रहे हो, और जब खर्चा कम होता है इनकम ज्यादा होती है मतलब सेविंग्स आर पॉजिटिव. यस और नो? Yes, ma'am. As it is higher level of income. लिखा? लिख रही हो कि नहीं अब तुम? लिख रही हूँ. लिख लिया कि बचा है? अब यहाँ पे AD is greater than Y, तो सेविंग्स क्या Y हो is जाती greater है? than 8. सॉरी Y is greater than AD, तो सेविंग्स क्या हो जाती है? पॉजिटिव. बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? No, ma'am. ये लिख लिया क्या तीनों? सॉरी दोनों ने लिख लिया? लिखो आगे. कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम. फटाफट फटाफट. कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम even if income is zero. Even if income is zero, there is always some minimum Autonomous consumption known as autonomous consumption. Ma'am, इसका recording आप भेज रहे हैं. हाँ? Will you be sending the recording of this? I will. I'll make a Telegram group. You just download Telegram and send me hi. है ना? मतलब on the number जिस पे ग्रुप बनाया ना वो वाले नंबर पे hi भेजना. चलो I'll read it. Pay attention. AD starts from okay. एक और लाइन लिखो. Income line लिखो. Income line Y. लिखो income line Y is always a 45-degree line. Income line Y is always a 45-degree line starting from the origin. कहाँ से start होती है? Origin से. कहाँ से start होती है? origin से. Clear? अब सुनो जो मैं बोल रही हूँ. AD starts on y-axis. It suggests minimum level of expenditure independent of. तुम underline कर लो. E is the point where aggregate demand is equal to y. Prior to it, AD is greater than y. This is because of impact of minimum level of AD. Beyond E, savings negative रहती है. Beyond E, income is higher. That is higher level of income. Savings are positive because income is high, so people try to save a part of their income. ठीक है, आगे लिखो. एक और पॉइंट लिखो. When income increases, aggregate demand also बताओ. कोई डाउट है क्या किसी को? No, ma'am. अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम और सुनो सूर्यांश, तुम सैटरडे की क्लास थोड़ी जल्दी आ जाना. हाँ ना, मैं बता दूंगी. अभी 3 बजे के बाद